A very good morning, dear Parthians. Welcome to Parth Online Tutorials. Students, today we will continue with our chapter number 6, Cascading Style Sheets. Students, in previous lecture we have already discussed how to insert a style sheet code in HTML file. Do you remember beta how many ways to insert a style sheet code? Yes, there are 3 ways. The very first one method is known as inline styles or inline CSS rules. Second way to insert a CSS code is internal or embedded style. Third one is external style sheets. Okay, means we can insert a CSS rule as a external style sheet in HTML फाइल. नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज और अ पैराग्राफ और अ हेडिंग. मीन्स यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ HTML with the help of background properties of CSS. So today we will discuss another 2 properties that are related to CSS. The very first one is CSS text properties. If you want to change the appearance of the text, ठीक है, आपको टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना है और यू वांट टू ऐड सम स्पेशल इफेक्ट्स टू द appearance of the text, then you can use CSS text properties, or you can also say these are the text styles that we can implement on text of web page. And second that we have to discuss, that is CSS font styles. Now what is the use of font styles or font properties? Font properties or attributes, okay, attributes or properties or styles, these are used to set the appearance of individual character in a line. Like if you want to change the font size, you want to change its styles, then you can do all these things with the help of font styles of CSS. So let's start with the CSS text properties. ठीक है बेटा. So हमें क्या करना है, हमें हर एक प्रॉपर्टी का नेम याद रखना है. एंड सेकेंड, हाउ टू राइट दैट प्रॉपर्टी इन CSS. वी हैव टू रिमेंबर इट्स सिंटेक्स. सिंटेक्स मीन्स हाउ टू राइट दैट property. So the very first one property name as text align property. Now what is the use of align? As the name specify, this property is used to horizontally align the text of a document. अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हो तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. हाउ टू राइट इट? क्या सिंटेक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी and then sign of colon, and then you can give any one of the following values. The possible values for this text align properties are left, right, center, justify. ठीक है, आपको ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आपके पास एंड यू हैव टू मेंशन ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. आप जब एक स्टाइल दे रहे हो तो उस टाइम पे आपको कोई एक वैल्यू देनी है. मीन्स अगर आप टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो लेफ्ट वैल्यू दे दो टेक्स्ट अलाइन की. राइट करना चाहते हो तो यू कैन गिव राइट, और जस्टिफाई करना चाहते हो तो जस्टिफाई. सो द वेरी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, हाँ जी, द वेरी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड दैट इज नोन एज text align property. Now the second property is named as text decoration property. Beta, text decoration property is used to underline, overline or strike through the text. ठीक है, अगर आप टेक्स्ट को अंडरलाइन, ओवरलाइन या स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो देन यू कैन यूज टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी. एंड सिंटेक्स इज टेक्स्ट डेकोरेशन colon and then one of the possible values, underline, overline, line through, and its default value is none. डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को लिखते ही नहीं हो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को अपने आप वो नन ही कंसिडर करता है. ओके, मीन्स कोई अंडरलाइन, ओवरलाइन या स्ट्राइक थ्रू नहीं होता आपके टेक्स्ट के ऊपर. नाउ नेक्स्ट वन इज कलर प्रॉपर्टी. बेटा, कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द टेक्स्ट कलर. ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी अप्लाई करके देखी है. और
कलर के लिए आपको टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नीड टू मेंशन द नेम. Yes, only write color property and then give any of the color name. Now next text property is named as text transform property. बच्चे this property is used to capitalize the text or convert text to uppercase और lowercase. अगर आप अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो एक केस से दूसरे केस में, देन यू कैन यूज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी. Yes, its possible values are capitalize. Yes, capitalize means if you capitalize कब यूज़ करोगे? capitalize क्या करेगा? आपके हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा. सेकेंड वन इज अपर केस. ओके, इट कैपिटलाइज ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड. लोअर केस, हाँ जी, कन्वर्ट ऑल लेटर टू ऑफ ईच वर्ड टू स्मॉल केस एंड द डिफॉल्ट वैल्यू नन और द टेक्स्ट रिमेन्स अनइफेक्टेड. तो हमने अभी तक 4 टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया. लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. पहले इन 4 प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. फॉर दिस वी हैव टू ओपन नोटपैड फाइल. ठीक है बच्चे, लास्ट टाइम भी हमने एक नोटपैड फाइल क्रिएट की थी, नेम एज class7.html. हाँ जी, दिस इज़ योर नोटपैड फाइल. ठीक है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है. हमने टाइटल दे दिया फर्स्ट पेज. बॉडी में हमने 2 H1 टैग यूज़ किए. ओके, H1 टैग में हमने लिखा पार्थ पब्लिक स्कूल. ठीक है, सेपरेट जगह पर किए सो दैट कि आपको पता चले कि कैसे प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं. नेक्स्ट हमने 2 टाइम्स H2 टैग यूज़ किया. H2 में हमने लिखा क्लास 7th ऑफ पार्थ पब्लिक स्कूल एंड देन क्लोज ऑफ बॉडी टैग एंड क्लोज ऑफ HTML टैग. दिस सेव दिस फाइल विद नेम class7.html. ओके, और अगर आप इसकी आउटपुट देखना चाहते हो देन यू हैव टू ओपन दिस फाइल विद एनी ऑफ द वेब ब्राउज़र जो आपके सिस्टम पर अवेलेबल है. मैंने इसको गूगल क्रोम के साथ ओपन किया. सो बेटा दिस इज़ एक्चुअली कंट्रोल S करोगे जो भी चेंजेस करते हो आप फाइल में एंड देन हाँ जी, दिस इज़ द आउटपुट. दिस इज़ योर हेडिंग 1 H1 पार्थ पब्लिक स्कूल. लास्ट लाइन में भी हेडिंग H1 है. नाउ दीज आर 2 headings H2. Now I want to perform the text properties. ठीक है, अब मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करना है. तो बेटा हम किसी भी टाइप से CSS रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लगा सकते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू यूज CSS इंटरनल स्टाइल्स. मीन्स मैं इसको एज अ इंटरनल को और क्या बोलते हैं, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल्स CSS स्टाइल्स की फॉर्म में यूज़ करूँगी. ओके, और हाँ जी, आपको याद है कि हम इंटरनल स्टाइल्स और इंटरनल CSS रूल कहाँ पर लगाते हैं? यस, इंटरनल रूल्स हम लगाते हैं हेड टैग में. इन हेड टैग वी हैव टू राइट अ स्टाइल टैग और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, रूल डिफाइन करना पड़ता है. मुझे H1 पर रूल लगाना है. क्या रूल लगाना है? H1 इज हेडिंग टैग. क्या सिंटेक्स होता है? नेम ऑफ सेलेक्टर, यस, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड देन राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी. आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ H1 टैग्स. ठीक है, मुझे कलर चेंज करना है. H1 टैग्स के टेक्स्ट कलर चेंज करना है. सो राइट डाउन कलर और मैंने कलर का नेम दे दिया रेड. ओके, एंड देन क्लोज ऑफ दिस स्टाइल टैग. नाउ दिस इज योर इंटरनल और यस, इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल CSS स्टाइल. और ध्यान रखना बच्चे, जब आप इसे एज अ इंटरनल रूल इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके जितने भी H1 टैग्स यूज़ किए होंगे आपने बॉडी टैग के अंदर, उन सब पर ये रूल अप्लाई हो जाएगा, इंटरनल रूल. इज इट क्लियर? अगर यही रूल मैंने इनलाइन लगाया होता, इनलाइन क्या करते हैं बच्चे, आप पर्टिकुलर टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ रूल लगाते हो. ओके, अगर आप इंटरनल रूल लगाना चाहते हो देन वी हैव टू यूज स्टाइल टैग इन हेड टैग. if you want to implement it as a inline rule, then you have to mention in the within the tag with style attribute. और यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया है? हमने यहाँ पर इंटरनल रूल लगाया है. और एक बार इंटरनल रूल लगाने से आपके जितने भी H1 टैग होंगे उन सब पर ये रूल अप्लाई हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ सी इट्स आउटपुट.
यस, आउटपुट देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेव द चेंजेस इन HTML फाइल. यस, कंट्रोल S प्रेस करेंगे एंड देन ओपन वेब ब्राउज़र एंड रिफ्रेश दिस फाइल. यस, H1 टैग 2 टाइम्स लगाया था और दोनों बार इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसको एज अ इंटरनल स्टाइल लगाया है. अगर इनलाइन लगाया होता किसी एक पर्टिकुलर पर तो सिर्फ उसी H1 टैग का कलर चेंज होता. नाउ नेक्स्ट अगेन ओपन योर HTML फाइल. हमने एक रूल लगा के देख लिया, दैट इज कलर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर यस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी. ठीक है, अलाइनमेंट सेट करते हैं अब हम. इसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, H1 को ही अलाइन करते हैं. यू कैन राइट मोर देन वन प्रॉपर्टी. हाँ जी, इसके लिए लिखते हैं हम टेक्स्ट अलाइन. यस, टेक्स्ट अलाइन. मैंने इसे कर दिया राइट अलाइन. ठीक है, मैं इसकी वैल्यू दे देती हूँ राइट. ओके, नेक्स्ट हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, चलिए पहले इस प्रॉपर्टी की आउटपुट चेक करते हैं. फॉर दिस सेव दिस फाइल. यस, चेक योर आउटपुट. F5 रिफ्रेश करेंगे. ये जो हेडिंग्स हो गए वो आपकी कहाँ हो गई बेटा, अलाइन, राइट अलाइन. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर थी, लेफ्ट अलाइन थी. डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है टेक्स्ट की, दैट इज़ लेफ्ट अलाइन. ठीक है, आप इसे राइट अलाइन भी कर सकते हो, आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, आप इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हो. चलिए इसको सेंटर में ले आते हैं रादर देन राइट. तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू को चेंज कर दिया, दैट इज सेंटर. सेव द चेंजेस. नाउ हैव अ लुक एट द आउटपुट. इज इट क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. यस, 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हमने, कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट. नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी. टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी. आई वॉन्ट टू अंडरलाइन द टेक्स्ट. ओके, सो कोई भी एक वैल्यू दे सकते हो, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू. बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कोई भी अंडरलाइनिंग नहीं हो रही, कोई भी लाइन थ्रू नहीं हो रहा. ओके, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज नन. ओके, कंट्रोल S. नाउ सी द आउटपुट. यस, अंडरलाइन भी हो गया. सो हमने ये सब प्रॉपर्टीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लिए. यस, एक और प्रॉपर्टी रह गई आपके पास, दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी. ठीक है, आई वॉन्ट टू कैपिटलाइज ईच वर्ड और आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू लोअर केस. कोई भी एक वैल्यू इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं. फॉर दिस हाँ जी, नोटपैड की फाइल को ओपन करो. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैंने इसको क्या किया, यस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं लोअर केस में. ठीक है, लोअर केस. सेव योर फाइल, सेव द चेंजेस इन द फाइल, रिफ्रेश. यस, कन्वर्ट हो गया लोअर केस में. इज इट क्लियर? हाँ जी, और अगर आप इसको दोबारा से अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कन्वर्ट इट टू अपर केस. अपर केस. ओके, नाउ सी द आउटपुट. यस, आपका टेक्स्ट जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया. सो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, दैट इज टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी. नाउ द नेक्स्ट text property is text shadow property. Okay, you can also provide the shadow to your text with the help of text shadow property. उसके लिए क्या syntax होगा बेटा, text shadow, then you have to give the H shadow and V shadow color. आपको H shadow और V shadow का कलर देना पड़ेगा, means horizontal shadow and vertical shadow color. Now the next text property is your text indent property. If you want to indent your text, indentation होता बेटा the distance between the margin and the written text is called indentation. You can also set the indentation of the text with the help of text indent property. Here you have to give the value either in pixels or either in percentage. So next property is your line height property. Now what is the use of line height property? This property is used to specify the space between two lines of text. ठीक है, आप दो टेक्स्ट की 2 लाइन्स के बीच में कितना स्पेस देना चाहते हो, यू कैन प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर बेटा? सो दीज आर द अनदर 3 प्रॉपर्टीज दैट आर यूज्ड टू चेंज द appearance of the text.
let's apply these property in our HTML file. Okay, for this open HTML file or notepad file. Now make the changes here. हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे हम? वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड कलर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑन H1 टैग. ठीक है, अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं टेक्स्ट. यस, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है अभी हमने? टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी. ठीक है, अब टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है बेटा? टेक्स्ट शेडो मीन्स इट इज़ यूज टू सेट द टेक्स्ट शेडो अराउंड अ टेक्स्ट. ठीक है, उसके लिए हमें टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी लिखेंगे. देन गिव द वैल्यू इन द पिक्सल, हॉरिजॉन्टल वैल्यू एंड वर्टिकल वैल्यू, कि आप कितने पिक्सल्स तक उस शेडो को अपीयर कराना चाहते हो. ठीक है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स एंड वर्टिकल पिक्सल्स. सपोज मैंने कर दिया 3 पिक्सल्स. ओके, एंड कलर ऑफ शेडो ब्लू. आई वांट टू give a shadow of color blue to H1 tag. Now see the difference. देखो, इसे सेव करते हैं फाइल को, Ctrl+S, मूव टू योर HTML वेब ब्राउज़र. आउटपुट पर गए, अभी आउटपुट ये आ रही है आपके पास, कोई शेडो नहीं आ रही क्योंकि यह फाइल आउटपुट ऑलरेडी ओपन है. मैंने जो चेंजेस सेव किए हैं HTML फाइल में वो अभी तक यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए. मुझे इसके लिए इस फाइल को रिफ्रेश करना पड़ेगा. जैसे ही इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे आपके पास शेडो अपीयर हो जाएगी. पार्थ पब्लिक स्कूल 2 हेडिंग्स है H1 की. यस, रिफ्रेश दिस फाइल. अब देखिए, ये सी द डिफरेंस. ब्लू कलर की आपके पास शेडो आ गई. यस, इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो विड्थ है दैट इज 3 पिक्सल्स. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज इट यू कैन इंक्रीज. शेडो की हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, 7 पिक्सल्स कर देते हैं. ओके, नाउ सेव द चेंजेस, F5, रिफ्रेश. नाउ सी द डिफरेंस. सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टीज. ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट. लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई, दैट इज योर लाइन हाइट प्रॉपर्टी. ठीक है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी जो 2 लाइन्स के बीच का स्पेस डिसाइड करती. ठीक है, और मैं इन 2 हेडिंग्स के बीच कुछ स्पेस देना चाहती हूँ. दैट्स वाई द प्रॉपर्टी आई वांट टू यूज इज लाइन हाइट प्रॉपर्टी. ओके, लाइन हाइट हमने सेट कर दी 7. ओके, नाउ Ctrl+S, Alt+Tab, F5. देखा, देखिए 2 लाइन्स में लाइन हाइट थी वो कितनी हो गई आपके पास? 7. इज इट क्लियर? सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू योर टेक्स्ट अपीयरेंस. सो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं बेटा टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए? वी कैन यूज़ कलर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी, लाइन हाइट प्रॉपर्टी एंड टेक्स्ट इंडेंट. ठीक है, अगर आप मार्जिन से और स्पेस देना चाहते हो अपने टेक्स्ट को तो यू कैन यूज़ टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी. बच्चे आप इस प्रॉपर्टी को, इन टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को किसी भी टैग के साथ, किसी भी सेलेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं. अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ H1 के साथ. आई कैन यूज़ इट विद मल्टीपल टैग्स. देखो मेरे यहाँ पर इस HTML फाइल में 2H टैग्स यूज हुए हैं. वन इज़ H1 टैग एंड सेकेंड इज़ H2 टैग. अभी तक हमने जो अप्लाई किए वो हमने H1 टैग पर अप्लाई किए. इफ़ आई वॉन्ट टू अप्लाई द सेम रूल्स on H2 tag, so you just need to write here H1, नेम ऑफ सेलेक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है, H1, H2. इससे क्या होगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी H2 टैग्स हैं आपकी फाइल में, उन सब पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा. सेव द चेंजेस. यस, मूव टू वेब ब्राउज़र. हाँ जी, देखिए 2 H2 टैग थे. यस, क्लास 7th और ऑफ पार्थ पब्लिक स्कूल, उन पर भी ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, अप्लाई हो गई. यू वॉन्ट टू रिमूव दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम H1, जस्ट रिमूव द नेम ऑफ H1. यस, सेव करिए चेंजेस को. Ctrl+S से हम सेव करते हैं F5. यस, हेडिंग 1 नॉर्मल आ गई आपके पास, और वो जो भी आपने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी वो H2 पर अप्लाई हो गई. हेडिंग्स लेवल H2. इज इट क्लियर? सो ऑल दिस अबाउट द, yes,
ऑल ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी, हाँ जी, ये सारी प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड थी, टेक्स्ट की अपीयरेंस से। नाउ वी विल मूव फर्दर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास टेक्स्ट, यस, फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, CSS font properties. Now these properties are basically used to set the appearance of individual character. You want to change the face, size, color of the text, so you can use with the help of font properties. बच्चे हमने HTML में font tag किया था, उसके 3 ही एट्रीब्यूट थे, फर्स्ट वन इज कलर, सेकेंड इज साइज एंड थर्ड वन इज फेस। सो यहाँ पर हमारे पास 5 फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, पहली फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली? दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द फेस ऑफ द फ़ॉन्ट के फेस को चेंज करना है बेटा आपको, ठीक है। आप फ़ॉन्ट के फेस को कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, एलिजीरियन, जो भी आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। सो इट्स सिंटेक्स इज फ़ॉन्ट फैमिली, राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉलन एंड देन गिव एनी ऑफ वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज़, जो भी आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट के फेसेस अवेलेबल है, फेस अवेलेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज is used to increase or decrease the size of the font. बच्चे इसमें आप वैल्यू दे सकते हो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, यू कैन गिव स्मॉलर, लार्जर, लेंथ वाइज, और यू कैन ऑल्सो गिव परसेंटेज वाइज वैल्यू, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू फॉन्ट इज फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। बच्चे फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को सेट करना चाहते हो। आप नॉर्मल फ़ॉन्ट, ठीक है, नॉर्मल तो नॉर्मली आपके पास डिफ़ॉल्ट नॉर्मल फ़ॉन्ट ही अपीयर होता है, आप उसको स्लांटिंग वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, ऑब्लिक करना चाहते हो, तो यू कैन गिव एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल। सो यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट फेस विद द हेल्प ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली, you can change the size of the font with the help of font size property, you can change the style of the font with the help of font style property। बच्चे मुझे ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ चेंज करनी है फ़ॉन्ट की, ठीक है, तीनों, फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना है, तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल। रादर देन दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दैट इज़ नेम एज फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। ये फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी की हेल्प से आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को, साइज़ को और फैमिली तीनों चीज़ों को चेंज कर सकते हो। इट्स सिंटेक्स इज फ़ॉन्ट लिखेंगे, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज फ़ॉन्ट, देन राइट डाउन द कॉलन एंड सबसे पहले बेटा इसका ऑर्डर मैटर करता है, आपको पहले फ़ॉन्ट स्टाइल ही देना है। मतलब अगर आप फ़ॉन्ट को इटैलिक फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप लिखोगे फ़ॉन्ट, फिर कॉलन, इटैलिक, फिर फ़ॉन्ट का साइज़ देना चाहते हो 7, फ़ॉन्ट साइज़ की जगह क्या लिख दोगे 7, और फ़ॉन्ट फैमिली की जगह कैलिबरी, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेट द फ़ॉन्ट फेस एज कैलिबरी। तो आप एक ही प्रॉपर्टी के साथ, एक ही फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी, एक ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के साथ यू कैन सेट द फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट फैमिली। नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। Is it clear? So font is a shorthand property. Is it clear? And the last property that is related to font is font weight property. If you want to set the weight of a font, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे font weight property। इसमें आप वैल्यू दे सकते हो नॉर्मल, बोल्ड, आप बोल्ड करना चाहते हो, अब बोल्डर करना चाहते हो, और इसकी पॉसिबल वैल्यू होती है कितना बोल्ड करना चाहते हो, उसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है 100, 200, 300, इस तरह कोई भी एक वैल्यू दे सकते हो अप टू 900। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ़ॉन्ट। लेट्स अप्लाई दीज फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज ऑन आर HTML फाइल, ठीक है। HTML फाइल ओपन करते हैं। फॉर दिस वी हैव टू ओपन HTML फाइल। HTML फाइल ओपन कर ली। बेटा अभी तक जो इसकी आउटपुट है इस फाइल की वो ऐसे दिखाई दे रही है। हमने 2H2 टैग्स पर क्या किया हुआ है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई हैं। नाउ वी वांट टू अप्लाई
द font properties on H1 tags. ठीक है, अब हम H1 टैग पर लगाएंगे एंड वी विल अप्लाई इनलाइन रूल्स. बच्चे इनलाइन रूल लगाएंगे, और इनलाइन रूल लगाने के लिए क्या करते हो, इन हेड टैग यू हैव टू अप्लाई द रूल इन स्टाइल टैग. अभी तक हमने H2 टैग पर अप्लाई किया है कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन. नाउ वी वांट टू अप्लाई ऑन H1 टैग. कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज. ठीक है, हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगा लेते हैं. कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली बेटा, फ़ॉन्ट फैमिली. ठीक है, दिस इज यूज टू सेट द फेस ऑफ द फ़ॉन्ट. कोई भी लगा सकते हो. यू कैन राइट, यू कैन गिव एनी ऑफ द वैल्यू, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, जोकरमैन, एलिजीरियन. ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल, आपके सिस्टम में अवेलेबल होते हैं फ़ॉन्ट. ठीक है, वो देखने हो तो यू कैन गो टू दिस फॉर्मेट टैब, ओपन फ़ॉन्ट. ठीक है, अ फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. दीज आर द नेम्स ऑफ वेरियस फेसेस. ठीक है, यहाँ से कोई भी फेस की वैल्यू को कॉपी करके आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट फ़ॉन्ट साइज, हमने फ़ॉन्ट साइज दे दिया 50. एंड देन राइटिंग स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट, वो हमने दे दिया इटैलिक. ओके, सो 3 फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज लगाई, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट स्टाइल. नाउ सेव द चेंजेस इन द नोटपैड फाइल. जो भी आपने ये HTML कोड चेंज किया है इसको सेव करेंगे. हमने CSS के रूल्स को चेंज किया है टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द HTML फाइल. ओके, नाउ सी द आउटपुट. F5 प्रेस करेंगे रिफ्रेश करने के लिए. हाँ जी, देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया, फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज हो गया, और राइटिंग, यस, राइटिंग फेस भी चेंज हो गया. फेस यानी कि फैमिली चेंज हो गई फ़ॉन्ट की. इज इट क्लियर? नाउ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ फ़ॉन्ट दैट इज रिलेटेड टू फ़ॉन्ट वेट. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम, फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी. दिस इज यूज टू सेट द वेट ऑफ द फ़ॉन्ट. आप इसकी वैल्यू न्यूमेरिक में 100 से 900 तक दे सकते हैं. आप इसकी वैल्यू को नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर. पहले तो ऑलरेडी जो आपके पास डिस्प्ले हो रहा है ना, वो बोल्डर हो रहा है. ठीक है, बोल्ड हो रहा है. आप इसको लाइटर करके देखिए, THTER, लाइटर. सेव द चेंजेस, मूव टू दिस फाइल. देखो लाइट हो गया आपका टेक्स्ट. ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू बोल्ड इट, मैक्सिमम बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हो तो यू कैन गिव बोल्ड, और मैक्सिमम बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्डर. ओके, सेव द चेंजेस. यस, सो दीज आर वेरियस फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमने आज डिस्कस की. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ CSS जो आपके सिलेबस में है, दैट इज बॉर्डर प्रॉपर्टीज. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. बट बेटा यू हैव टू रीड दीज प्रॉपर्टीज वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू लर्न द वैल्यूज एज वेल एज सिंटेक्स. आपको नेम भी याद रखना है प्रॉपर्टीज़ का, आपको सिंटेक्स भी याद रखना है, और प्रॉपर्टी और CSS रूल की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ दे सकते हो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, वो भी लर्न करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो लर्न दीज 2 टेबल्स गिवन इन योर बुक. कि कौन कौन से टेबल बेटा? टेबल ऑन पेज नंबर 82 फॉर text properties or CSS text styles, and on page number 84 that is for the font properties of CSS or CSS font styles. So students, this is all for today. Have a nice day and remain safe.